नाम से क्या लगता है सुन के, व्हाट आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस? Main motive is not profit. The Yes. main motive is social welfare. If not profit, then what else can be the main motive? Welfare. Yes. Can you give some example? NGOs. Yes, very good. NGOs. NGOs involved in social work. Okay. Any other organization where the purpose is not profit and nor is it social welfare? Can you think of it? Suppose there is a theater club, there is a library. वो गुरुद्वारे कमेटी होती है. Yes, Aradhya? सर वो गुरुद्वारे कमेटी होती है. I don't know the name. नहीं, वो तो वेलफेयर के लिए. जो मतलब. Yes, you are right. गुरुद्वारा बनाने के लिए अगर कोई मैनेजिंग कमेटी है तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गई. ठीक है. अगर सोशल वेलफेयर के लिए वो बना रहे हैं तो फिर वो वेलफेयर वाली कैटेगरी में आ जाएगी. अगर पर्पस रिलीजियस हुआ तो फिर वो नॉन वेलफेयर वाली में आ जाएगी. ठीक है. So there are certain organizations which are founded not to earn profits but either to render services to their members. For example, clubs. ठीक है. रोशनारा क्लब है, मोहन बगान है, वेरियस स्पोर्ट्स क्लब्स आर देयर. तो इनका पर्पस क्या है? मेंबर्स की स्पोर्ट्स की जो उनकी हॉबी है, उनकी पैशन है, उसकी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना. देयर कैन बी थिएटर क्लब्स, देयर कैन बी लिटरेरी क्लब्स, लिटरेरी सोसाइटीज, लाइब्रेरीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे आराध्या ने कहा गुरुद्वारा की मैनेजिंग कमेटी है, किसी मंदिर की मैनेजिंग कमेटी है, चर्च की हो सकती है, मॉस्क की हो सकती है. ठीक है. ये सब हो गई. और दूसरा पर्पस हो सकता है सोशल वेलफेयर के लिए. ठीक है. जिसमें स्कूल हो सकते हैं चैरिटेबल, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, चैरिटेबल डिस्पेंसरीज हो सकती हैं. देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस which are distributing free food to people, which are helping in skill development of poor people so that they can become self-dependent. All these come in the category of non-profit organizations where the main purpose is not to earn profit but either to indulge in welfare activities for the underprivileged, for the needy, or for the entertainment or recreation of the members like libraries, theaters clubs, sports clubs, etc. Clear? Yes, sir. And all schools, all hospitals, they are not allowed to make profit out of their activities. Even if there is some surplus, that is to be used for the purpose of institution only. The persons managing these institutions, non-profit organizations, they cannot withdraw money out of it for their personal use. Neither money nor any other asset. They cannot use any asset, anything of the organization for their personal purpose. So there is no concept of drawings in NPOs. The profit or surplus belongs to the organization only. It does not belong to the owners. Clear? Sir? Yes. Sir, entirely private schools would also be considered non-profit organizations. Which ones? Schools which are completely private. Yes, not yes. charitable. All private Sir, schools, legally they are allowed to be run on non-profit basis only. जितने भी schools हैं इंडिया में, जितने भी schools हैं, they are all non-profit organizations. All schools or all hospitals, legally they are all non-profit organizations only. Certain things which are different in non-profit organizations, बाकी सब कुछ same है. accounting, commercial organizations की तरह ही, profit making organizations की तरह ही है पूरी. कुछ चीजें जो different है वो अब हम discuss करेंगे इस chapter में. एक है receipts and payments account. Non-profit organizations के financial statements में, जैसे commercial organization के financial statements में trading account, profit loss account, balance sheet बनती है. Non-profit organizations के financial statements में एक बनता है receipts and payments account
एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। क्लियर? Yes, sir. कौन से तीन बनते हैं? रिपीट करो निखिल। Receipts and payment account, income and expenditure account, balance sheet. Very good. Now let us discuss these three one by one. What are they? Receipts and payments account is prepared at the end of the year because it is part of financial statements. It is simply a summary of cash book. On left hand side, that is debit side, it shows all the receipts, and on right side, that is the credit side, it shows all the payments. Then what is the difference between cash book and receipt and payment account? Cash book bhi banti hai throughout the year. Can you guess what is the difference? It's a summary of cash book. So what is the difference between cash book and receipt and payment account? The cash It is a book का final direct statement book. हाँ जी, Final Cash book का- statement. ओके। रिसीट एंड पेमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जबकि कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है। एक तो डिफरेंस ये हो गया। और कुछ? लेकिन सेम चीज हम दोबारा क्यों बनाएंगे? जब हमने कैश बुक बना रखी है उसमें भी सारी रिसीट सारी पेमेंट दिखा रखी हैं, तो वही चीज हम दोबारा क्यों बना रहे हैं? ये सक्षम। टोटल अमाउंट लिखते होंगे ना, मतलब कैश और बैंक का जो भी बैलेंस टोटल आता होगा वो इसमें ट्रांसफर कर देते होंगे। वेरी गुड। टोटल तो कैश बुक के नीचे टोटल लिखा हुआ होगा। सर रिसीट्स थोड़ा सा ठीक डायरेक्शन में गया है तुम्हारा आंसर हिया, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आया। तो कैश बुक में डेबिट क्रेडिट साइड होती है और इसमें रिसीट्स भी एंड होती पेमेंट्स में है, रिसीट एंड पेमेंट में भी होती है। और उसमें बाइफरकेशन होती है एंट्रीज की, और इसमें टोटल अमाउंट ट्रांसफर। हाँ, तुम ठीक बोल रही हो, लेकिन टोटल किस टर्म्स में वो एग्जैक्ट मैं चाह रहा हूँ। ओके, ध्वनि वांट्स टू से समथिंग। यस ध्वनि। So both bank and cash transactions are written in this. ओके यस। एक डिफरेंस तो ये हुआ, कैश बुक में कैश और बैंक के अलग अलग कॉलम होते हैं, इसमें एक ही अमाउंट का कॉलम होता है, उसमें कैश और बैंक दोनों की ट्रांजैक्शंस आती हैं। दूसरा, मैंने हाईलाइट किया था ये इन वर्ड्स को, समरी ऑफ कैश बुक। कैश बुक में सपोज आपने सैलरी पे करी, तो हर मंथ पे की होगी सैलरी, तो पूरे साल में 12 एंट्रीज आई होंगी सैलरी की, है ना। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम पेमेंट साइड पे दिखाएंगे बाय सैलरी, और वो 12 के 12 अमाउंट ऐड करके एक ही बार उनका टोटल दिखा देंगे, जो हिया कह रही थी बात। ठीक है, तो हम 12 बार नहीं लिखेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड पे बाय सैलरी, हम एक ही बार लिखेंगे बाय सैलरी, और जितनी बार सैलरी कैश बुक के पेमेंट में आ रही है उन सारे अमाउंट्स को ऐड करके उसके आगे अमाउंट कॉलम में शो कर देंगे। क्लियर? यस सर। Similarly, Yes, sir. for all the receipts, for all the payments, we will do the same thing. जितनी बार भी वो रिसीट रिपीट हो रही है कैश बुक में, उन सब का टोटल करके एक बार हम रिसीट साइड पे दिखा देंगे। कोई भी पेमेंट अगर रिपीट हो रही है कैश बुक में, तो उसका टोटल करके एक ही बार हम पेमेंट साइड पे दिखा देंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। और जो रिपीट नहीं हो रही वो तो उसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार आ जाएंगी। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है। So all entries of cash book are shown in this account, but total amount of repeated entry is written once. ठीक है। It has a single column for amount on both sides for both cash and bank. तो कैश और बैंक दोनों ट्रांजेक्शन्स मिक्स हो जाती हैं, इसमें अलग अलग कॉलम नहीं होते। कैश बुक की तरह ही इट कंटेन्स रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसी भी वजह से अगर कोई अमाउंट आया है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो चाहे कैपिटल नेचर का हो, किसी भी वजह से अगर कोई पेमेंट हुई है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो चाहे वो कैपिटल नेचर की हो, ऑल विल बी शोन इन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। क्लियर? Yes, sir. यस सर। Now Yes, we sir. come to the next one, income and expenditure account. जो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हैं, दिस इज वेरी सिमिलर टू दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम ये भी कह सकते हैं वही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, नाम चेंज है।
क्यों नाम चेंज है? क्योंकि प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो नाम में भी प्रॉफिट वर्ड यूज करना नहीं चाहते, इसलिए नाम हो गया इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस शो कर देंगे जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में करते हैं, क्रेडिट साइड पे सारी इनकम्स शो कर देंगे जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, पहला चेंज तो आ गया हेडिंग में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब क्योंकि प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो जब व्हेन इनकम विल बी मोर देन एक्सपेंसेस, द डिफरेंस वी यूज टू कॉल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो यहां पर उसे प्रॉफिट ना कह के हम कहेंगे सरप्लस। क्या कहेंगे? सरप्लस। तो प्रॉफिट की जगह टर्म यूज होगी यहाँ पे सरप्लस। और अगर लॉस हो गया, अगर एक्सपेंस इनकम से ज्यादा है, तो लॉस की जगह हम टर्म यूज करेंगे डेफिसिट। क्या यूज करेंगे? डेफिसिट। डेफिसिट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर के रिसीट्स और एक्सपेंसेस आते हैं, अगर आपको ध्यान हो, ओनली रेवेन्यू नेचर, नॉट कैपिटल नेचर। ठीक है, तो इसमें भी ओनली रेवेन्यू नेचर रिसीट्स एंड पेमेंट्स विल कम। क्लियर? अब आते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट भी वैसे ही है बिल्कुल जैसे कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस की बनती है, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो थोड़ा तो डिफरेंस होगा। इसमें कैपिटल की जगह, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ओनर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है कोई, नो वन इज द ओनर। एक ट्रस्ट होती है, एक मैनेजिंग कमेटी होती है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाती है, जिसमें कई लोग होते हैं। ठीक है, देयर इज अ चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट, देन जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, इस तरह से कई पोस्ट होती हैं उसमें। अ ग्रुप ऑफ पीपल रन इट, मैनेज इट। जिसने स्टार्ट की है वो भी ओनर नहीं कहलाता इसका, वो मैनेजिंग कमेटी का चेयरपर्सन हो सकता है बट ओनर नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ओनर कौन है? ट्रस्ट है, एक मैनेजिंग कमेटी है ओनर जो इसको रन कर रही है। तो इसमें कैपिटल की जगह हम टर्म यूज करते हैं कैपिटल फंड। क्या यूज करते हैं? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड, जिसको जनरल फंड भी कहा जाता है कई बार, या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड भी कहा जाता है। मतलब सेम है तीनों का, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड या जनरल फंड या कैपिटल फंड। और उसे हम लायबिलिटीज साइड पे दिखाते हैं बैलेंस शीट में कैपिटल की तरह ही। ठीक है, दूसरा डिफरेंस मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ड्राइंग्स नहीं दिखेगी आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज ड्राइंग्स आर नॉट अलाउड। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है तो फिर वो, उसका पर्पस जब प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, उससे कुछ कमाने का पर्पस नहीं है, तो ओनर ड्राइंग्स क्यों करेंगे? ओनर कोई है ही नहीं पहली बार, तो इसलिए ड्राइंग्स भी अलाउड नहीं है। तो इसलिए इसमें ड्राइंग्स जनरली नहीं होती। ठीक है, जो भी सरप्लस है वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, डेफिसिट है तो कैपिटल फंड में से लेस हो जाएगा। ठीक है, इफ बाई चांस देयर इज अ डेबिट बैलेंस इन कैपिटल फंड, जैसे कैपिटल का कई बार डेबिट बैलेंस हो जाता है ना सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप, ऐसे ही अगर एनपीओ में कैपिटल फंड का नेगेटिव बैलेंस हो गया यानी डेबिट बैलेंस हो गया, तो हम उसे एसेट साइड पे दिखाते हैं, लेकिन फिर उसका नाम चेंज हो जाता है, इट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। फिर हम उसे कैपिटल फंड करके नहीं लिखते, उसे डेफिशिएंसी करके लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेफिशिएंसी। यहां तक क्लियर? यस सर। अब आप एक ये टेबल बनाओ अपनी नोटबुक्स में, 3 कॉलम्स। पहले वाले कॉलम में आप लिखोगे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दूसरे कॉलम की हेडिंग लिखो शो, तीसरे कॉलम की हेडिंग लिखो डू नॉट शो। फिर आगे डिस्कस करते हैं, जब बन जाएगा फॉर्मेट बताना मुझे, फिर आगे डिस्कस करेंगे।
रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के साथ ब्रैकेट में लिख लेना कैश बेसिस, क्योंकि कैश बुक की तरह ये कैश बेसिस पे बनता है। जितना भी कैश आया, जितना भी कैश या बैंक के थ्रू अमाउंट आया या गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आगे लिखना एक्रूअल बेसिस। प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह ये भी ड्यू बेसिस पे बनता है कि जितने एक्सपेंसेस और इनकम इस साल के ड्यू हैं, चाहे वो रिसीव हुए या नहीं, चाहे वो पे हुए या नहीं। बन गया? Yes, sir. 1 minute. Yes, sir. ओके। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में क्या शो करना है? शो के नीचे लिखो ऑल अमाउंट्स रिसीव्ड और पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर फॉर एनी ईयर्स। जितने भी अमाउंट इस साल मिले हैं या पे हुए हैं वो सारे दिखाने हैं, चाहे वो इस साल के लिए थे, चाहे वो पिछले साल के कोई आउटस्टैंडिंग थे जो अब मिले हैं या पे किए हैं, चाहे वो किसी नेक्स्ट ईयर के एडवांस में हमें मिल गए हैं, एडवांस में हमने पे कर दिए, डज नॉट मैटर। इस साल में जितने भी मिले हैं और पे किए हैं वो सब शो करो। रिटर्न Yes, sir. Yes, sir. डू नॉट शो। रिसीट एंड पेमेंट में क्या शो नहीं करना? उसमें लिखो एनी अमाउंट्स फॉर करंट ईयर नॉट रिसीव्ड और पेड ड्यूरिंग करंट ईयर। मतलब जो अमाउंट इस साल मिलने थे लेकिन नहीं मिले तो शो मत करो, या पे करने थे लेकिन नहीं किए, पे नहीं किए तो शो मत करो। Yes, sir. Yes, sir. आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। ये बनता है एक्रूअल बेसिस पे, तो इसमें शो में लिखो ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर वेदर रिसीव्ड और पेड इन करंट ईयर और नॉट। मतलब जितने भी इस साल के एक्सपेंसेस और इनकम्स हमारे हैं ड्यू बेसिस पे, चाहे वो हमें मिले या नहीं मिले, चाहे वो हमने पे किए या नहीं किए। Yes, sir. Yes, sir. और क्या शो नहीं करना? Yes, sir. एनी अमाउंट्स रिसीव्ड और पेड इन करंट ईयर नॉट फॉर करंट ईयर। मतलब अगर इस साल कोई अमाउंट मिला है लेकिन वो इस साल के लिए नहीं है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, मिला है, एक्रूड था, तो उसे शो नहीं करना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। पिछले साल का कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, इस साल पे किया है, तो इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करना। इसी तरह से कमिंग ईयर्स के लिए कोई अमाउंट एडवांस में मिल गया है या पे कर दिया है तो उसे भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करना। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, इसके बेसिस पे आंसर दो। सैलरी रिसीव्ड दिस ईयर, सॉरी सैलरी पेड दिस ईयर 20,000, रिसीट एंड पेमेंट में आएगी या नहीं? आएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं sir. सोच के बताओ। आएगी, ठीक है, क्योंकि अगर पे की है तो हम मान के चल रहे हैं इस साल की पे की है जब तक और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है। सपोज प्रीवियस ईयर की सैलरी आउटस्टैंडिंग इस साल पे हो गई, रिसीट एंड पेमेंट में आएगी? आएगी। Yes. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी? आएगी सर। नहीं Sir. इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं नहीं। आएगी सर। नेक्स्ट ईयर की सैलरी एडवांस में हमने पे कर दी तो वो रिसीट एंड पेमेंट में आएगी? Yes, sir. Yes. इनकम Yes, एंड sir. एक्सपेंडिचर में नहीं। नहीं। नहीं आएगी सर। ओके। सपोज रेंट, हमें इनकम है जो रेंट हमारी, रेंट रिसीव्ड इस साल का 2,000 रुपीज, रिसीट एंड पेमेंट में आएगा? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा? Yes, sir. Yes. yes, sir. Yes, sir. विच साइड? Income side. Income side. इनकम साइड, दैट इज क्रेडिट साइड, ठीक है, Credit side. राइट। सपोज प्रीवियस ईयर्स रेंट
was accrued and received this year. Receipt and payment में आएगा? Yes, sir. Yes, sir. Income and expenditure में आएगा? No, sir. Very No, good. sir. Suppose इस साल का रेंट accrued है, मिला नहीं है, receipt and payment में आएगा? No, sir. No, sir. Income No, and sir. expenditure में आएगा? Yes, sir. Yes, sir. Very good. इस साल की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, रिसीट एंड पेमेंट में आएगी? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. एक्सपेंडिचर में आएगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक्सीलेंट. तो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके माइंड में, ठीक है? नाउ राइट द नेक्स्ट हेडिंग, सम स्पेशल आइटम्स रिलेटेड टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. हाँ जी अर्षित. सर मैं पूछ रहा था कि सर जैसे अगर हमने पिछले साल का जो रेंट था हमारा इनकम, सर वो पिछले साल एक्रूड हो गया था, यस. सर पर वो अभी तक रिसीव ही नहीं हुआ, तो सर बस वो पिछले साल की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा ना? हाँ, वो पिछले साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ गया होगा. इस साल भी नहीं सर मिला, फिर इस साल की इसमें भी नहीं आएगा? इस साल भी नहीं मिला तो ना रिसीट पेमेंट में आएगा ना इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा इस साल. ओके सर, ओके. लिख ली हेडिंग? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बोल दिया करो, मैं वेट करता रहता हूँ कि आगे डिस्कस करूंगा. ओके, फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें. अब कुछ ऐसी चीजें हम डिस्कस करेंगे जो जनरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स में हमें मिलती हैं और जनरली जो बाकी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स में नहीं होती. ठीक है, फर्स्ट लिखो एंट्रेंस फीस और एडमिशन फी. एंट्रेंस फी और एडमिशन फी. It is an amount collected on joining or entry of a new member. It is an income. किसी नए मेंबर के ज्वाइनिंग या एंट्री पर जो फी चार्ज जो होती है वो है और इसको इनकम की तरह ट्रीट करते हैं, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं इनकम साइड पे. ठीक है, रिसीट में भी आएगा और इनकम में भी आएगा. क्लियर? Yes, sir. रिसीट पेमेंट में तो ये सारे आएंगे जितने भी हम डिस्कस करेंगे. अभी मेनली हम डिस्कस कर रहे हैं कि अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा या बैलेंस शीट में, इन दोनों में से डिसाइड होगा जो जो हम डिस्कस करते जाएंगे. सेकंड है लाइफ मेंबरशिप फी. इट इज द अमाउंट कलेक्टेड फॉर लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप. कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऑप्शन देती हैं मेंबर्स को कि आप एनुअल मेंबरशिप की जगह लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप एक ही बार में ले लो. तो एक लमसम अमाउंट ले लेते हैं वो मेंबर से और लाइफ लॉन्ग उसे मेंबर बना देते हैं. ये क्योंकि वन टाइम रिसीट होगी उस मेंबर से, तो इसे हम मानते हैं कैपिटल रिसीट. सो इट इज एडेड टू द कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट. Yes, sir. देन थर्ड इज डोनेशन. जब हम कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के कॉन्टेक्स्ट में डोनेशन की बात करते हैं तो जनरली वो होता है डोनेशन गिवन. लेकिन जब हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली चैरिटी वाली जो है चैरिटेबल, इनमें डोनेशन की जब हम बात करते हैं या बाकियों में भी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ मेंशन ना हो तो डोनेशन को हमने लेना है इनकम, नॉट एन एक्सपेंस. कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मेंशन नहीं हो डोनेशन के आगे तो हम मानते हैं डोनेशन को एक्सपेंस, डोनेशन गिवन. एनपीओ में डोनेशन के आगे अगर कुछ मेंशन नहीं हो तो हम मानते हैं उसे इनकम, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को जनरली डोनेशन मिलती है मेंबर से भी और नॉन मेंबर से भी. सपोज कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल चला रहा है तो बहुत से लोग उसमें डोनेशन कर देते हैं कि भाई हम हमारी तरफ से इतनी डोनेशन, हमारी तरफ से इतनी डोनेशन, अच्छा काम कर रहे हो आप. ठीक है, तो डोनेशन इनके लिए एक रेगुलर इनकम होती है. स्पेशली जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम होती यही है, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ने कोई गुड्स तो बेचने नहीं है, गुड सर्विस तो चैरिटेबल वाले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम इज डोनेशन. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Amount received generally by charitable organizations for carrying out their charitable work. A general donation is an income. Revenue receipt है,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पे दिखाते हैं इसे। क्लियर? Yes, Yes. sir. रिटर्न। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट आइटम इज सब्सक्रिप्शन। अब मैंने आपको बताया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के होते हैं, एक तो चैरिटी के लिए जो है, दूसरे जो मेंबर्स की पर्सनल रिक्रिएशन या एंटरटेनमेंट के लिए, स्पोर्ट्स क्लब हो गए, थिएटर क्लब हो गए, लाइब्रेरी हो गई, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है सब्सक्रिप्शन। ये अपने मेंबर्स से रेगुलरली, मे बी ऑन अ मंथली बेसिस और मे बी ऑन अ क्वार्टरली बेसिस और ऑन एन एनुअल बेसिस, एक अमाउंट कलेक्ट करते हैं विच इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन, और उस अमाउंट से इनके सारे खर्चे चलते हैं। सो इट इज अ पीरियोडिक अमाउंट रिसीव्ड जनरली बाय ऑर्गेनाइजेशंस और क्लब्स or clubs serving their members, and this amount is collected from the members to continue their membership. So it is a which type of receipt? Revenue or capital? Revenue. Revenue. Receipt, and it is shown in income. सर जिसने लाइफ मेंबरशिप फी दे रखी होगी उसको तो नहीं देनी होगी सब्सक्रिप्शन? उसको ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या कहती हैं कि जिसने लाइफ मेंबरशिप फी दे रखी है उसे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं देनी, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं कि लाइफ मेंबरशिप फी आपने दे रखी है तो सब्सक्रिप्शन देनी है, पर कम देनी है, बहुत कम अमाउंट देना है दूसरों के कंपैरिजन में। ऐसा भी होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में। ओके सर। नेक्स्ट इज स्पेशल रिसीट और स्पेसिफिक डोनेशन। एक तो डोनेशन वो हुई कि किसी ने डोनेशन दे दी, ठीक है। सपोज आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, एक हॉस्पिटल चला रहे हो चैरिटेबल, तो बहुत से लोग डोनेशन देते रहते हैं कि भाई हम भी आपके इस नोबल कॉज में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हमारी तरफ से ये डोनेशन, वो तो आ जाएगी आपके इनकम में, ठीक है। लेकिन अगर कोई डोनेशन ये कह के देता है कि आप एक काम करो, इन पैसों से एक और बिल्डिंग बनाओ हॉस्पिटल की, एक नया सेक्शन ऐड करो हॉस्पिटल में, तो अब ये हो गई स्पेसिफिक डोनेशन, एक स्पेशल पर्पस के लिए, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. दिया आपको म्यूट कर रहा हूं, जब बोलना हो तो क्लिक कर देना, आपकी डिवाइस से कुछ नॉइज आ रहा है। यस अर्शित। सर वो गलती से, सॉरी सर, वो मैं लोअर करना भूल गया। ओके ओके, नेवर माइंड। हाँ, तो वो हो गई स्पेसिफिक डोनेशन या स्पेशल रिसीट। या सपोज किसी ने एक स्कूल में डोनेशन दी और कहा कि इन पैसों से आप मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को प्राइज दोगे, ठीक है, तो वो हो गई स्पेसिफिक डोनेशन। या किसी ने स्कूल में डोनेशन दी और कहा कि आप जो गरीब बच्चे हैं स्कूल में उनको बुक्स दोगे इस पैसे से, तो ये हो गई स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक रिसीट। इज द मीनिंग क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. जब इस तरह से किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई डोनेशन मिलती है तो ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी बन जाती है कि उस पैसे को उसी पर्पस के लिए यूज करना है। तो अब ये कैपिटल रिसीट हो जाती है और इसको हम शो करते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड पर एज अ रिस्ट्रिक्टेड फंड और अ स्पेसिफिक फंड। सपोज किसी ने बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन दी है तो हम उसे लायबिलिटीज में शो करेंगे बिल्डिंग फंड। किसी ने प्राइजेस देने के लिए कुछ डोनेशन दी तो हम उसे शो करेंगे प्राइज फंड, ठीक है। किसी ने स्कॉलरशिप देने के लिए डोनेशन दी तो हम उसे क्या शो करेंगे? Scholarship fund. Scholarship fund. एब्सोल्युटली, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, all receipts and payments related to that fund should be added subtracted to that fund only. Suppose किसी ने बिल्डिंग के लिए डोनेशन दी 10 लाख रुपीस की, हमने बिल्डिंग फंड दिखा दिया बैलेंस शीट में, ठीक है। अब उस 10 लाख में से 5 लाख रुपए हमने खर्च कर दिए इस साल बिल्डिंग बनाने में,
तो वो 5 लाख हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे एक्सपेंस, उस 5 लाख को बिल्डिंग फंड में से ही लेस करेंगे। क्लियर? यस सर। यस सर। और किसी ने भी डोनेशन दे दी बिल्डिंग के लिए तो वो उसी बिल्डिंग फंड में ऐड होता जाएगा, जितनी भी रिसीट्स उस फंड से रिलेटेड आएंगी उस फंड में ऐड होती जाएंगी। जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे उस फंड से रिलेटेड, उस पर्पस से रिलेटेड, वो उस फंड में से लेस होते जाएंगे जब तक उस फंड का अमाउंट 0 नहीं हो जाता। क्लियर? यस सर। यस सर। Next item is endowment fund. It is a donation received with a condition to use for specific purpose the income earned from investment of such amount. अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज किसी ने, आप एक स्कूल चला रहे हो, किसी ने स्कूल को डोनेशन दी, उन्होंने कहा कि लेट अस से 5 लाख रुपए डोनेशन दे रहे हैं हम, आप इस 5 लाख रुपए को यूज नहीं करोगे, इसको आप इन्वेस्ट कर दो, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दो इसकी। उस फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट आएगा, लेट अस से 10% पर एनम इंटरेस्ट आ रहा है, तो पर एनम कितना इंटरेस्ट आएगा? 10%। इतना सोचना पड़ रहा है, 5 लाख का 10%, 50,000। 50,000। ठीक है, तो 50,000 आप जो इंटरेस्ट आएगा हर साल उस अमाउंट में से आप स्कॉलरशिप्स दो, तो ये कहलाएगा एंडोमेंट फंड। मतलब ओरिजिनल जो डोनेशन का अमाउंट था उसे नहीं आपने यूज करना, उसको इन्वेस्ट करके रखना है। उसको इन्वेस्ट करके उस पे जो इनकम आएगी उस इनकम को स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करना है। क्लियर? यस और सर। स्पेसिफिक डोनेशन जो होता है वो फंड में से यूज होता है। यस यस, सो दैट द ओरिजिनल अमाउंट रिमेन्स इंटैक्ट, यानी वो हमेशा ही 5 लाख रहेगा फंड, तो इस केस में एंडोमेंट फंड में जब तक और अमाउंट उसमें आ नहीं आता। ठीक है, इट इज ऑल्सो शोन एज अ स्पेसिफिक फंड इन लायबिलिटीज। रिटर्न? यस सर। नेक्स्ट इज एन्युटी फंड। अब इस एग्जांपल को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। किसी ने 5 लाख की डोनेशन दी स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन कहा कि इसमें से 5 लाख में से आप हर साल 50,000 के अमाउंट की स्कॉलरशिप देते जाओ। तो पहले साल 50,000 की स्कॉलरशिप दे दी, वो लेस हो गए फंड में से, अब बचा 4,50,000। फिर अगले साल 50,000 की स्कॉलरशिप दे दी। इस तरह से करते करते 10 साल में वो फंड 0 हो जाएगा अगर और पैसा उसमें नहीं आया तो। क्लियर? यस सर। यस सर। It is called annuity fund. Amount received with a condition to pay specified amount periodically to the designated beneficiaries. It is also shown as a specific fund in liabilities. ये जनरली मोस्ट कॉमनली कहां पे होता है? सपोज किसी ऑर्फनेज में आप गए, आपने एक चाइल्ड को वहां पे अडॉप्ट कर लिया इन द सेंस, सपोज वो बच्चा अभी 4th क्लास में है, आपको पता है अभी उसके 12th क्लास तक 8 इयर्स हो रहे हैं, तो 8 इयर्स का उसका एजुकेशन की फीस आप पे कराए कि हर साल इस अमाउंट में से उसकी फीस पे करते रहना, तो उसका 12th तक का एजुकेशन का खर्चा हम दे रहे हैं। तो ये एक एन्युटी फंड का एग्जांपल हो गया। क्लियर? यस सर। यस सर। नेक्स्ट आइटम इज गवर्नमेंट ग्रांट। जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो कुछ सोशल वेलफेयर में लगी हुई हैं, और अगर वो अच्छा काम कर रही हैं तो कई बार गवर्नमेंट उनके काम को रिकॉग्नाइज करती है और गवर्नमेंट उन्हें ग्रांट देती है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, गवर्नमेंट का काम भी वेलफेयर है, तो गवर्नमेंट कहती है अच्छा हर साल हम आपको इतना अमाउंट देंगे। ठीक है, तो एक तो हो गई वो जनरल पर्पस के लिए गवर्नमेंट ग्रांट, तो वो तो शो हो जाएगी इनकम में अगर हर साल मिल रही है। जनरली सपोज आप एक स्कूल चला रहे हो या चैरिटेबल हॉस्पिटल चला रहे हो और गवर्नमेंट से कुछ हर साल ग्रांट मिल रही है, तो वो इनकम में शो हो जाएगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने भी ग्रांट दी, रेगुलरली नहीं, कभी कभी दी और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी, सपोज गवर्नमेंट ने कहा कि आप ये अच्छा स्कूल चला रहे हो, आप एक काम करो, इस दूसरे एरिया में भी आप स्कूल
खोलो और उसके लिए जमीन खरीदने के लिए, बिल्डिंग के लिए हम फंड देते हैं, तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो गई, उसे शो करेंगे एज अ स्पेसिफिक फंड। क्लियर? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सब्सिडी। सब्सिडी क्या होती है? जो गवर्नमेंट पैसा देती है ताकि आपके प्रोडक्ट का प्राइस कम हो। सपोज आप एक चैरिटेबल कैंटीन चला रहे हो जिसमें आप गरीब लोगों को 5 रुपीज पर प्लेट में खाना देते हो, लंच प्रोवाइड करते हो, ठीक है। जो कॉस्ट आपको पड़ती है पर प्लेट की 20 रुपीज, आप वो 5 रुपीज में दे रहे हो, यानी 15 रुपए अपनी तरफ से खर्च कर रहे हो, ठीक है। अब गवर्नमेंट कहती है अच्छा 15 रुपए ये जो आप खर्च कर रहे हो इसमें 10 रुपए हम कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हमारी तरफ से सब्सिडी। दिस विल बी शोन एज एन इनकम। क्लियर? Yes, sir. होगा, मतलब देती रहेगी गवर्नमेंट सब्सिडी। हाँ, अगर जब तक देती रहेगी तब तक हम इनकम में शो करते रहेंगे, जब नहीं देगी तो हम शो नहीं करेंगे। अगर एक बार भी मिली तो भी वो इनकम में ही शो होगी, ठीक है। यस। नेक्स्ट आइटम इज ऑनरेरियम, amount paid to a non-employee expert for his or her services. If we take services of an expert who is not an employee of our organization, तो उनको जो हम पेमेंट देते हैं उसे हम सैलरी नहीं कहेंगे क्योंकि वो हमारे एम्प्लॉय नहीं है, उसे हम टर्म दे देते हैं ऑनरेरियम। ऑनर से वर्ड आया कि रिस्पेक्टफुली हमने ये अमाउंट उन्हें दिया है उनकी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज के लिए, ठीक है। सो इट इज एन एक्सपेंस। सपोज एक हॉस्पिटल है, उन्होंने किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को बुलाया किसी पर्टिकुलर केस के लिए जिसकी उन्हें जनरली जरूरत नहीं पड़ती, और उसके लिए उन्हें कुछ फीस पे की हॉस्पिटल ने। सिंस दैट डॉक्टर इज नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ दिस हॉस्पिटल, दिस पेमेंट विल बी कॉल्ड ऑनरेरियम। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट आइटम इज लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है अमाउंट रिसीव्ड अंडर विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। किसी पर्सन ने अपनी डेथ से पहले एक विल बनाई, विल में लिखा जाता है कि मेरी डेथ के बाद मेरे प्रॉपर्टी या वेल्थ किस किस को कितना कितना मिलेगा, और उस विल में उस पर्सन ने मेंशन किया कि इतने अमाउंट मैं इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को या इस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करना चाहता हूं। आफ्टर माई डेथ दिस मच अमाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम माई बैंक अकाउंट टू दिस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वो कहलाएगा लेगेसी। क्लियर? यस। Yes, sir. अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसने दिया है, उसने ये भी मेंशन कर दिया अपनी विल में कि बिल्डिंग बनाने के लिए, तो फिर वो स्पेसिफिक फंड यानी बिल्डिंग फंड करके लायबिलिटीज में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस मेंशन नहीं है, देन इट विल बी शोन एज एन इनकम। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स मटेरियल। जनरली ये किसके केस में होगा? स्कूल्स के केस में या स्पोर्ट्स क्लब के केस में। मटेरियल मतलब बॉल्स, बैट्स वगैरह। सो परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, फॉर एग्जांपल बॉल्स, बैट्स एटसेट्रा, इज एन एक्सपेंस, वेयर एज सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल इज एन इनकम। क्योंकि बॉल्स, बैट्स वगैरह ये ऐसी चीजें हैं जो यूज होती रहती हैं और खेलने में वॉर्न आउट हो जाती हैं, रिप्लेस हो जाती हैं, फिर स्क्रैप में बिक जाती हैं। क्लियर? यस सर। Yes, sir. इसी से मिलती जुलती टर्म है लेकिन मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। मटेरियल और इक्विपमेंट में क्या फर्क हुआ? सर मटेरियल जो है वो विद टाइम वियर एंड टियर हो जाएगा, मतलब मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल करंट एसेट है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। ये डिफरेंस है मेनली, ठीक है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट
मतलब मशीनरी रिलेटेड विद स्पोर्ट्स, फॉर एग्जांपल जिम की मशीन है एक्सरसाइजिंग की, ठीक है, या फिर क्रिकेट की पिच के लिए वो रोलर होता है हैवी सा, पिच को लेवल करने के लिए। तो इस तरह की जो मशीनरी यूज होती है स्पोर्ट्स में, दैट इज कॉल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। These are shown in assets. These are capital expenditure जब हम खरीदते हैं तो they are shown in assets. At the time of sale, book value is reduced from sports equipment in balance sheet. लेकिन अगर कोई गेन या लॉस हुआ बेचने पे, जैसे मशीनरी में हम करते थे, तो वो गेन या लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता था। तो इस केस में कहां पे जाएगा? एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यस, वेरी गुड। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जब खरीदेंगे एसेट्स में ऐड हो जाएगा, जब बेचेंगे एसेट्स में से ही उसकी बुक वैल्यू लेस हो जाएगी। लेकिन इफ देयर इज एनी गेन और लॉस ऑन सेल, दैट गेन और लॉस विल कम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर? यस सर। ओके, देन नेक्स्ट आइटम इज, सो इसमें इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, स्पोर्ट्स मटेरियल और इक्विपमेंट में। I again repeat, sports material is a current asset, sport equipment is a non-current asset. Sports material की purchase expense है, income and expenditure में आएगी, और sale income है, वो भी income and expenditure में income side आएगी। Whereas sports equipment की purchase capital expenditure है, assets में आएगा, उसकी sale भी sports equipment में से, assets में से book value पे less होगी। If there is any gain or loss, that will come in income and expenditure account. Clear यहाँ तक? Yes sir. Next is purchase of newspapers and sale of old newspapers. Again, ये schools, hospitals, libraries, बहुत सारी NPOs में हो सकता है। तो purchase of newspaper is an expense, income and expenditure में expenditure side पे आ जाएगा। Whereas sale of old newspapers is an income. So it will come in income and expenditure account on income side. Clear? Yes. Yes sir.